میرا شاہد ہے. کہاں ہے تمہارا گواہ؟ کون ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو. جی جناب، میں ایسا گواہ حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے، جو میری حمایت کرے، اور نہ ہی بانو کی دشمنی کرے. وہ طوطے کی طرح فر فر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے. اور دوسرے یہ رشتہ دار بھی بانو زلیخا کا ہے. یقیناً اس کی شہادت بانو کے حق میں ہونی چاہیے. بتاؤ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ سزا پاؤ اسے حاضر کرو. میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آواز آپ سن رہے ہیں. کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں میری ان تمام تر خدمات کی خاطر جو میں آپ کی خاطر بجا لایا ہوں کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے. ایک نوزائیدہ بچہ گواہی دے گا؟ وہ چھوٹا بچہ؟ اس میں کوئی قباحت نہیں. کہیں کہ لے کر آئے. درود برالی جناب پوٹیفار. یہ رہی میری پھوپھیزا ستینہ اور یہ ہے کسی. کہو کہ گواہی دے. کیسین کلام کرو. جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو. کیسین کلام کرو. با حکم خالق یکتا اس کا کلام بیان کرتا ہوں. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہ گار ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے. تم نے کس طرح بات کی میرے بچے؟ تم اپنے آنسوؤں سے مجھے فریب دینا چاہتی تھی؟ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے. میں نے تم پر جو تہمت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں. امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخا کو معاف کر دو گے اور اس ماجرے کو ہمیشہ کے لیے اسی راز میں رکھو گے. کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا. اب جاؤ. کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ ایک بچہ، کسین، ستینہ کا بیٹا. وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا. کیا ایک نوزائیدہ بچہ بول سکتا ہے؟ لیکن وہ بولنے لگا. آخر یہ کیسے ہوا؟ بس مجھے بھی نہیں معلوم.
यूजारसीफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत भी हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूजारसीफ ने ना सिर्फ साकिनी ने कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत ना थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए। खुद ब खुद? मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूजारसीफ कौन है? सकीना, सेतिना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे?
کافی عرصے سے زلیخا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. میں نے خود قصر میں دیکھا. جب میں نے یوزارسیف سے متعلق بات کی تو زلیخا بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی. پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. کہاں اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گھلا ڈالا. ہمسر آمون اور مصر کے خدائے عظیم اور معبد کی دیوی خود ایک غلام کی اسیر ہو گئی، اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام کی. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. قائن اعظم مالی جناب آنخ ماہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے. زلیخا اور پوتیفار کو اتنی آسانی سے اس واقعے سے چھٹکارا نہیں ملنا چاہیے. ہاں، جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے. کیا بتایا نہیں تھا کہ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں؟ دفع ہو جاؤ. جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، آمون آپوکیز کو سلامت رکھے. درود بر کیبونی کاہن معبد جانشین جناب آنخ ماہو. آمون آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ آپوکیز اپنے ارباب اختیار آمون ہوتب کے برعکس ایک با ایمان شخص ہے. کہاں میں اور کہاں جناب آمون ہوتب. فرما روا تو خود مقام نیم خدائی رکھتے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہو؟ وہ بھی بے ایمان ہے، اور عزیز مصر پوتیفار بھی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود بھی بارہا ان کو کہنان معبد اور خداؤں کی اہانت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہو. ہاں کیا ہے، لیکن خداؤں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو چاہے کہیں. اسے بے ایمانی تو نہیں کہیں گے نا. ان کا ہم سے کیا موازنہ؟ کیا خداؤں کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دیں؟ یہ ناممکن ہے. گویا تمہیں کچھ خبر نہیں. آمون ہوتب نے پوتیفار کو حکم دیا ہے کہ معبد پر حملہ کریں اور آمون کو نیست و نابود کر دیں. یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا. جناب آمون ہوتب کبھی ایسا حکم صادر کر ہی نہیں سکتے. آنکھ ماہو، کاہن اعظم جھوٹ تو نہیں بول رہے. چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں تاکہ تم خود پوچھ لو. اگر اس میں کوئی حقیقت ہوئی تو آمون انہیں سخت سے سخت سزا دے گا. فی الحال تو پوتیفار کو سزا ملی ہے آپوکیس. آمون ہوتب کی باری بھی آ ہی جائے گی. پوتیفار کی بیوی زلیخا کی ایک بیگانے غلام کے ساتھ رسوائی کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا تم نے. تو کیا پوتیفار اور ان کی بیوی آمون کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں؟ یقین رکھو، اس واقعے نے تو پوتیفار کی عزت اور وقار کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں. کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آنکھ ماہو کاہن اعظم کے پاس لے چلوں. یہ تو میری دیرینہ خواہش تھی، میں ضرور چلوں گا. بہت خوب. فی الحال تو جناب آنکھ ماہو موجود نہیں ہے. وہ جیسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا. جی. یوزار سیف ایک پاک باز انسان ہے. میں نے تو سنا ہے کہ بانو کافی عرصے سے ان میں دلچسپی لے رہی تھی اور بارہا انہیں اپنی طرح ماہر کرنا چاہتی تھی، لیکن یوزار سیف نے ہمیشہ ہی گریز کیا. یہاں تک کہ چند روز پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیکھے گئے.
سارے شہر میں اسی قصے کے چرچے ہو رہے ہیں. ایک اشراف زادی سرزمین مصر کے خاتون دوم آخر کس طرح اس خیانت کے مرتکب ہو سکتی ہیں؟ پوتیفار کو چاہیے تھا کہ وہ زلیخا کو مار ڈال دے. سنا ہے کہ وہ یوزارسیف کی شیفتہ اور شیدائی ہو گئی ہیں. جب محفل میں یوزارسیف کا ذکر آیا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا. مہاری تم تو اچھی طرح جانتی ہو یہ سب دل کا معاملہ ہے. وہ دل دے بیٹھی ہیں. وہ یوزارسیف کی عاشق ہو گئی ہیں جبکہ یوزارسیف نے ہمیشہ بے اتنائی برتی. یہ تو فطری بات ہے کہ زلیخا بے بس ہو کر ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھی. یوزارسیف کی پارسائی قابل ستائش ہے. البتہ کوئی بھی غلام اپنے مالکوں کی مرضی کے خلاف اتنی مزاحمت نہیں کر سکتا. اور وہ بھی زلیخا جیسی حسین و جمیل مالک. خیر چھوڑو. میرے خیال میں زلیخا کا یہ عمل پوتیفار کے کفر آمیز رویوں کا نتیجہ ہے. مگر وہ کیسے؟ معبد کا ایک کاہن کیبونی آج میرے پاس آیا تھا. وہ کہنے لگا آمون ہوتب سوم اور جناب پوتیفار دونوں ہی خدائے آمون سے پھر گئے اور معبد کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہے. یعنی خداؤں نے زلیخا کو مجبور کیا تھا تاکہ پوتیفار کو ذلیل و خوار کرے؟ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا. لہذا طے پایا کہ کیبونی کے ساتھ معبد کے کاہن اعظم آخمہو کے پاس جائیں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے. اب تم گھر جاؤ. مجھے بھی قصر جانا ہے. جاؤ. جس طرح دریائے نیل دوبارہ جاری ہوتا ہے اور نباتات حیات نو پاتے ہیں، میرے پیروکار بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی پا سکتے ہیں. اسے میرا حکم سمجھیں کہ اپنے مردوں کو حنوط کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی جاری رہے اور موت کے ذریعے آپ کا رشتہ حیات منقطع نہ ہو جائے. کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں خشک زمین میں آپ لوگوں کے اجساد ہزاروں سال تک محفوظ رکھتا ہوں؟ میرا یہ ارادہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے راضی رکھیں. مجھے اپنے نذرانوں کے ذریعے خوش کریں. میرے معبد کو اپنے قیمتی نذرانوں سے بھر دیں تاکہ میں دوسری دنیا میں آپ لوگوں کو حیات جاویدانہ عطا کروں. بیتی ہوتی میں آمون تمام خداؤں کا خدا لوگوں کی مشکوک نظروں کو دیکھ رہا ہوں اور شکوک و شبہات تمہاری آنکھوں میں پڑھ رہا ہوں. آج تو تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن آئندہ تمہاری مشکوک اور چور نظروں کی سزا صرف موت ہوگی. میں معافی چاہتا ہوں. مجھے بخش دے. میں تمام خداؤں کے خدا آمون سے بخشش طلب کرتا ہوں. مجھے بخش دے. معاف کر دے. میں آپ سب لوگوں پر اپنی برکت نازل کر کے حیات جاویدانہ عطا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے رخصت ہو کر اپنی استراحت گاہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ امور بندگان کی انجام دہی کے نتیجے میں ہونے والی تھکن کو استراحت کے ذریعے دور کروں تاکہ اگلے روز کے امور کے انجام دہی کے لیے خود کو پھر سے آمادہ کر
आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपुपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पोतीफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊँगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुँचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पोतीफार तो आमून की नफरैन का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, बाजीमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बाइस नंगो आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पोतीफार को भी नहीं बचना चाहिए। पोतीफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पोतीफार जलील ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पोतीफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात की कुव्वत मिस्र जो पोतीफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त व नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों, क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कसर में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि यह किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम। वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो त्यामिनी, सीतीना, युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे खल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तश्तज़बाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिने आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें।
मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया, आज ही आली जनाब आख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौनी बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब माबद का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावंद हो मीर साहब उसिया चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, न कि जुलेखा से। जिसका माशूक बेमिसल और लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार सीफ, ये बंद दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है।
वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? जुजार सीफ यही है। तो पुतिफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब, आली जनाब, पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम मालिक कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। आमून शर्मसार है। आमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबुद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा बारहा महाबत के काहिनों की मुखालफत और तौहीन की। आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तज़हीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनाने माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका असर कैसे करोगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहू ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो।
नहायत आरामदेह नशस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ नहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तमाम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक नहायत तेज धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं। पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बज़ाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ युज़ार सिफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युज़ार सिफ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ ज़ारकान मिस्र,
आज की इस मुनक्किदा महफिल में चाकू की तेज धार और नारंज का नर्म और नाजुक छिलका हमारे माँ बहन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजार सीफ दाखिल हों। कितना खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा।
ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री ख़वातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री ख़वातीन के रद्द अमल से मुवाज़ना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन ख़वातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री ख़वातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलसल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो।
परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजार सिर्फ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिलशिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजार सिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युजार सिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजार सिफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साहब, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। वो तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नर्म कर देती।
लेकिन युजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ही अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और युजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। युजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ।